In a century of digging up bones, a whole new frontier has opened up. What kind of dinosaur they cooked up in that lab? What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? No, we don't have any idea about it. And we are going to get an idea about it. That is genetic editing. More specifically, I should say genetic engineering. And genetic engineering is main principle of biotechnology. So let's start chapter number 11, biotechnology principles and process. Okay, so you have seen a lot of monstrous things in on screen, right? Now let's come to the main topic, that is we are going to study our biotechnology chapter 11, principles and process, in which we are mainly dealing with genetic engineering, right? That's why I have shown you all those things. All those things can be possible in future, right? Which is not there currently, obviously, but it can be possible in future. Not monstrous gorilla like that, but something else which is quite peaceful and calm than these creatures and quite helpful for us, right? Like you can see muscular cow. I'll show you a picture of muscular cow. Okay, you are seeing a picture of muscular cow behind me, right? All these are products of, obviously for meat production, right? It is there for meat production. So all these are different applications of biotechnology. Not only this, but even skimmed milk or milk for babies, right? Specially formulated milk for infants, right? So all these are products of biotechnology, genetic engineering, or I should say transgenic animals, transgenic plants, transgenic microorganisms, or I should say genetically modified organisms, understood? GMOs, understood? So let's study about definition of biotechnology. What is definition? According to European Federation of Biotechnology, it is defined as integration of natural science and living organisms, cells, parts thereof and molecular analogs. ठीक है, देखो एक एक चीज को ध्यान से देखना. इंटीग्रेशन किसका किसका है? एक तरफ नेचुरल साइंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स के पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मतलब उनके जैसे उसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स, राइट? सो ऑल दिस इंटीग्रेटेड विद नेचुरल साइंस, और ये सबको मिला के हम लोग कुछ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर सके फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मींस इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and living organisms, cells, parts thereof, molecular analogs for products and services. Understood? So this is called definition of biotechnology. Remember this, it is very important to learn. Understood? And there are two principles of this biotechnology. First is genetic engineering, जिसमें हम लोग GMOs बनाते हैं, ठीक है? जो desired gene हमारा होता है, मुझे पता चला कि चलो कि ये ऑर्गेनिज्म में, चलो जैसे यूएस का एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई यूएस पीपल को पता चला कि भाई वहां के साइंटिस्ट को पता चला कि स्पाइडर सिल्क इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील. स्पाइडर का सिल्क स्टील से भी स्ट्रॉन्गर होता है, अंडरस्टूड? और उसका नेचर कैसा होता है कि भाई वन कैन मेक फैब्रिक ऑफ इट और फाइबर्स फ्रॉम इट, अंडरस्टूड? लेकिन स्पाइडर के सिल्क अगर मैं निकालू, सपोज यहाँ पर स्पाइडर के बहुत सारे वेब बने हुए हैं, अभी वहां से मैं स्पाइडर का सिल्क निकालू तो बहुत सारी जगह पर कट्स होगा, तो एक कंटिन्यूस रील नहीं बनेगा, अंडरस्टूड? कंटिन्यूस फाइबर नहीं बनेगा, तो उसको स्पन करके बनाने में कोई इतना मजा नहीं आएगा. मतलब क्वालिटी ऑफ दैट फाइबर और क्वालिटी ऑफ फैब्रिक मेड फ्रॉम इट वुड नॉट बी गुड. तो एक कंटिन्यूस मुझे फाइबर जैसा मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में एक ही जगह से मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई टूटा हुआ पीसेस लेके मैंने ज्वाइन किया. और आई कैनॉट प्रोड्यूस और आई कैनॉट पेट स्पाइडर्स. चलो भाई बेटा, जैसे डॉग को हम लोग करते हैं ना कि चलो सिट डाउन तो बैठ जाते हैं, तो स्पाइडर को तो मैं ऐसा कर नहीं सकता भाई चलो स्पिट, तुम थूको यहाँ पर तो तुम्हारा वो निकलेगा, फिर उससे वेब बनाओ. तो वी कैन नॉट डू दिस थिंग. तो हम लोग ने नहीं, सॉरी, अमेरिकन लोग ने क्या किया, फिर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ऑफ अमेरिका, व्हाट दे हैव डन इज they have taken out that gene. First of all, they have identified that gene which is producing that particular protein which comes in air and become more stronger than steel. Understood? पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये बन जाता है एकदम स्ट्रॉन्गर सॉलिड, अंडरस्टूड? which is much stronger than, not much stronger but stronger than steel. It is also called as biosteel. Understood? तो ये लोग ने वो जीन आइसोलेट किया, मतलब दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, और आई शुड से जीन,
they have isolated from spiders genome. फिर ये जीन को वो लोग ने इंटीग्रेट किया गोट्स या शिप के लैब में गोट के लैब आई मीन गोट के जीनोम में इंटीग्रेट करवाया. फिर क्या अब यहां पर भी इंटीग्रेशन भी कैसे करवाया कि भाई दिस प्रोडक्ट आई मीन प्रोडक्ट फ्रॉम दिस जीन, ये जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ उसके मिल्क में हो और कहीं पर हम लोग को नहीं चाहिए. वी डोंट वांट वेब इन ब्लड ऑफ गोट, या फिर हम लोग को गोट को ऐसे तो नहीं करना है भाई गोट थूके और वहां पर से वो सलेवा कलेक्ट करके हम लोग उसमें से ये भी नहीं करना है. बट यस वी आर कलेक्टिंग मिल्क ऑफ गोट, सो वी वांट दैट स्पाइडर वेब टू बी प्रोड्यूस्ड इन मिल्क. तो ये सब प्रमोटर्स से हो जाता है. ठीक है, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे मतलब नॉट इवन इन 11th 12th, आप अगर बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ना है तो यू कैन स्टडी अबाउट ऑल दोस थिंग्स यूजिंग सुटेबल प्रमोटर्स दे हैव मेड इन सच वे. और फिर क्या किया कि भाई ये जो जीन है जो स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करता है, नाउ इट इज एक्सप्रेसिंग इट्स प्रोटीन, उसमें से जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है, वो मिल्क में प्रोड्यूस हो रहा है. फिर मिल्क को केमिकली ट्रीट किया और ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है या प्रोटीन का प्रोडक्ट होगा, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इसको आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया. फिर इसमें से नाउ इट इज इन हाईली विस्कस लिक्विड फॉर्म, तो इसको एयर के कांटेक्ट में अभी नहीं आने दिया, राइट. तो उसमें एक एप्लीकेटर को जस्ट टच करके फिर थोड़ा सा उसमें निकाला एंड दैट पार्ट जो वो हाईली विस्कस होता है ना, हम लोग को मालूम है हनी में हम लोग एक बार स्पून डिप कर एक पतला सा फाइबर जैसा बन जाता है ना, राइट. एक मतलब एक लिक्विड में ऐसा बनता है जो हाईली विस्कस होता है. तो ऐसा जब बन जाता है और ये जो एकदम पतला सा जो कॉलम होता है उसमें जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो it reacts with oxygen, chemicals or proteins present in this column react with it reacts with oxygen. Yes, it reacts with oxygen and becomes solid. Understood? एक बार वो solid बन गया फिर उसको हम लोग spun कर सकते हैं, राइट. तो स्पन करके कंटिन्यूस ये स्पन किया मतलब हो रहा है अंदर से निकल रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है. जब तक वो स्पन हो तब तक वो ऊपर पहुंचते सॉलिडिफाइड हो जाएगा, राइट, बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. और एक कंटिन्यूस हम लोग को फाइबर मिल जाता है. अंडरस्टूड? हम लोग को नहीं, यूएस वालों को, बिकॉज दे हैव पेटेंट फॉर दैट. तो वो लोग के कंटिन्यूस स्पन में कंटिन्यूस वो लोग को एक फाइबर मिल जाता है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग लेंथ, जिसमें से वो लोग फैब्रिक बना सकते हैं. एंड दैट फैब्रिक इज यूज्ड टू मेक यूएस बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर यूएस आर्मी. अंडरस्टूड? यूएस मिलिट्री उनके लिए बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनता है इट इज मेड फ्रॉम स्पाइडर सिल्क इन दिस वे. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें से हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी हमारे घर में यूज कर रहे हैं, हमारे घर में होंगे भी, वी डोंट नो. अंडरस्टूड? वेजिटेबल्स आप मार्केट से जो ला रहे हो दैट मे बी प्रोडक्ट ऑफ जीएमओ, वी डोंट नो. फिर दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन. अब ज्यादातर हम लोग जो भी जीन एक्सप्रेशन लेते हैं वी आर डूइंग वी आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम जीएमओस एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब ज्यादातर ये जीएमओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं जिसका कल्चर हम लोग करते हैं. तो अब ये जो कल्चर कर रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल हमारा होता है न्यूट्रिएंट. जो ये सेल हम लोग यूज करने वाले हैं वो सेल क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट को यूज करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं. अंडरस्टूड? लाइक फर्मेंटेशन प्रोसेस, लाइक फर्मेंटेशन प्रोसेस. अंडरस्टूड? तो अगर उसमें कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर हो जाते हैं तो दे विल यूज अप आवर ऑर्गेनिज्म आवर न्यूट्रिएंट. वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस monsters, but we want to produce certain organisms which can provide our desirable characteristics, right. मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा जब हम लोग ये चैप्टर के सेकेंड पार्ट में जाएंगे ना, तो we will study about existing application of biotechnology. जो एप्लीकेशन उसका करंटली अवेलेबल है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारे खाने में, मेडिसिन में, बहुत सारी अलग अलग चीजों में आती. इट इज रीचिंग टू अवर होम, राइट. प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज रीचिंग टू अवर होम. सो हम लोग वो सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में पढ़ते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट व्हाई वी नीड बायोटेक्नोलॉजी. हम लोग को क्या जरूरत पड़ गई बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की. ठीक है, तो हम लोग को ऐसा कभी हम लोग भी ऐसा चाहते हैं, वी वांट अब मतलब हमारा ग्रीड का तो कोई लिमिट नहीं है, राइट. तो हम लोग को कभी हम लोग बहुत अजीब चीजें मांगते रहते हैं. लाइक हमें कभी ऐसी काउ चाहिए जिसमें स्किम्ड मिल्क आता हो, राइट. We want spider silk to be produced in goat's milk, right. So we want all these things to do.
टू हैपन, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो भाई जीन्स तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, राइट, वही के वही जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, तो देयर इज नो चांस ऑफ ब्रिंगिंग एनी चेंज विद इन दिस स्पीशीज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई एक स्पीशीज के अंदर जितने अलग अलग इंडिविजुअल्स है दे कैन अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, दे विल बी न्यू वेरिएंट्स, और जो न्यू वेरिएंट है वो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स में से आएंगे, राइट। तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा जीन्स का फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, दोनों पेरेंट में अलग अलग कॉम्बिनेशन है जीन्स के, अब दोनों का मिक्स होकर कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा नए ऑफस्प्रिंग में। अंडरस्टूड होता है ना, हम लोग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आई एम 50% ऑफ माय फादर एंड 50% ऑफ माय मदर, तो मैं एग्जैक्टली अपने पापा जैसा नहीं हूँ, एग्जैक्टली अपने मम्मी जैसा नहीं हूँ, आई एम genetically I am partially identical to my father, 50% and 50% to my mother. Understood? Because genes दोनों में से आए हैं और 50-50% में आते हैं। We have been doing this hybridization method to produce offsprings, to produce individuals of our own desired characteristics, right? In crops, in animal husbandry, right? जब हम लोग animal husbandry करते हैं तो livestock के साथ हम लोग ये सब करते हैं, राइट। हम लोग को कोई काउ ऐसी चाहिए जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी हो और ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी हो, तो ऑब्वियसली दो ऐसी काउ का ब्रीडिंग करवाएंगे जिसमें से एक काउ में मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती हो और दूसरी काउ दूसरा ब्रीड डिजीज रेजिस्टेंस वाला हो, राइट। अब ये दोनों में जब हाइब्रिडेशन होगा और काउ जब अगर बॉर्न होगी तो ये काउ में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, और या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर इसके साथ भी आ सकता है जो हमें नहीं चाहिए। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, राइट, एंड एवरी टाइम वी हैव टू गो फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड? इट इज नॉट कि हमें जो चाहिए रिजल्ट वही हमेशा मिलता है, राइट। एंड द हाइब्रिडेशन मेथड इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लॉट ऑफ स्क्रीनिंग एंड ऑल दोस सिलेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी डन, और उसमें से कुछ उसका एफिशिएंसी भी बहुत कम होता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में, राइट। तो हम लोग अभी ये सब जब हम लोग को पता चला तो वी वांटेड भाई एक ही हम लोग एनिमल प्रोड्यूस करें उसमें वो सारे जीन्स हो जो हमें चाहिए, तो हाउ वी कैन डू दैट। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई चलो मुझे ये जीन चाहिए, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए आई वांट इन दिस एनिमल, तो ऐसा क्यों नहीं है कि भाई ये डीएनए को मैं अलग से कट करके ले लूं ये एनिमल में से एंड आई विल आइसोलेट दिस डीएनए, और ये डीएनए में ये एनिमल में अगर इसके जीनोम में अगर इंटीग्रेट करवाता हूं तो दिस पर्टिकुलर एनिमल विल हैव दिस डीएनए एंड विल प्रोड्यूस दैट डीएनए विल एक्सप्रेस इन इट्स बॉडी एंड दिस एनिमल विल प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट जीन वी हैव इंटीग्रेटेड इन इट, इजंट इट? तो ये सुनने में कितना इजी लग रहा है, बट इट इज नॉट दैट इजी, राइट, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। फ्यूचर में हाइब्रिडेशन से ज्यादा इजियर ये हो जाएगा, राइट, बिकॉज वी आर वेरी मच एडवांसिंग राइट नाउ इन बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो ये हो जाएगा, और आफ्टर क्रिस्पर्स टेक्नोलॉजी वी हैव एडवांस्ड मच, ठीक है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है वो हम लोग ये चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, इस बार ये साल में नोबेल अवार्ड जिनको मिला है they have invented CRISPR technology and they got Nobel award for CRISPR technology only. Understood? Okay, चलो, तो we can do this thing, right, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम प्रोड्यूस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए हम लोग ने अलग से इंटीग्रेट किया, इट वाज नॉट नेचुरली प्रेजेंट विद इन डीएनए सेगमेंट, तो वो डीएनए सेगमेंट को कट करके हम लोग ने बीच में अपना डीएनए सेगमेंट को लाइस करवाया है, लाइगेट करवाया है, जोड़ दिया है। अब वो पूरा तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया इस तरीके से, तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। जीन ट्रांसफर किया हम लोग ने, फिर क्या होता है कि जीन क्लोनिंग हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर में कि जीन क्लोनिंग क्या होता है, वी विल स्टडी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो फिर ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर इसमें से मेन साइंटिस्ट थे एंड अनदर वन इज स्टैनली कोहेन। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ ऐसा किया था कि दे हैव taken out a DNA which is responsible for providing antibiotic resistance
ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी मीडियम, जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है। नाउ दिस बैक्टीरिया इज हैविंग an antibiotic resistant gene in its plasmid DNA। अब plasmid DNA तो आपको मालूम होना चाहिए। What is plasmid DNA? Plasmid DNA आप लोग ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 8 में प्रोकैरियोटिक सेल में। There is a DNA which is present as an extra chromosomal DNA, मतलब क्रोमोसोम के बाहर वाला DNA, it is a circular DNA and they are it is expressing its characteristic, right? तो उसके characteristics express होते हैं, that is called plasmid DNA। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड डीएनए, उसके प्लाज्मिड डीएनए से हम लोग ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, वहां से आइसोलेट किया, आइसोलेट और प्योरीफाई, जो बोलो, ठीक है। देन दिस डीएनए इज इंटीग्रेटेड इन प्लाज्मिड डीएनए। हम लोग ने अलग से प्लाज्मिड डीएनए लिया, उसमें ये जीन को इंटीग्रेट किया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन by using an enzyme called DNA ligase। यहाँ पर DNA ligase एंजाइम यूज करके, वही DNA ligase जो DNA के रेप्लिकेशन में हो रहा था, या कहां पर यूज हो रहा था? रेप्लिकेशन में। याद करो अपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट को फिर लाइगेट किया था, isn't it? तो वही DNA ligase यहाँ पर यूज हो रहा है टू इंटीग्रेट आवर डिजायर्ड DNA विदिन द प्लाज्मिड DNA। तो प्लाज्मिड DNA को कट किया जाता है यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए को कैसे कट किया जाता है? यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सीजर नहीं होता, बट आई विल शो इट एज सीजर बिकॉज़ इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस इंट्रोडक्शन वी विल कम टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओनली, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ ह्यूज टॉपिक बट इंपॉर्टेंट एंड इजियर टॉपिक, राइट? तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके हम लोग यहाँ पर एज अ मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए को कट करेंगे और वहां पर अपना डिजायर्ड डीएनए को लाइगेट करवा देंगे, ठीक है। डीएनए जैसे ही डिजायर्ड डीएनए लाइगेट हो गया तो प्लाज्मिड डीएनए पूरा ऐसा हो गया जिसमें हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। नाउ दिस प्लाज्मिड डीएनए इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट इज इट कॉल्ड? क्लोनिंग वेक्टर। इट इज अ काइंड ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है तो वो तो अपना मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना, right? It is not able to produce its multiple copies। Multiple copies produce करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि copies ज्यादा होंगे तो it would be able to pass on to the next generation। Understood? अगर copies अपना नहीं बना पाएगा तो next generation में वो नहीं जा पाएंगे। दोनों में से एक सेल डिवाइड होके जब दो सेल बनेंगे तो दो में से एक ही सेल में वो जा पाएगा। Understood? So it should be able to produce its copy। तो दोनों ही सेल में, दोनों डॉटर सेल में, फ्रॉम अ मदर सेल में, मदर सेल अंडरगो डिवीजन तो डॉटर सेल में प्लाज्मिड डीएनए जा पाएगा, राइट? तो चलो अब ये प्लाज्मिड डीएनए है, इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग इसलिए बोलते हैं यहाँ पर, चलो जब हम लोग डीएनए क्लोनिंग या वेक्टर का क्लोनिंग बोलते हैं तो उसका मतलब ये है प्रोड्यूसिंग, इट कैन बी क्लोनिंग किसको बोलते हैं हम लोग? टू प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज। प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज को ही हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये क्लोनिंग वेक्टर है। अब ये क्लोनिंग वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज हैव इट्स ओन साइट। उसमें एक छोटा सा साइट होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां से ये प्लाज्मिड डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है। It is using the enzyme of bacterial, it is using bacterial enzyme DNA polymerase। DNA polymerase पढ़ा था ना हम लोग ने 6th चैप्टर में। वही DNA polymerase यहाँ पर यूज होता है for replication of DNA, this plasmid DNA, और इसमें origin of replication होता है, वहां से ये replication start होता है। Understood? तो ये इसलिए उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर इसलिए बोलते हैं, वेक्टर का मीनिंग होता है व्हीकल, कि भाई सीधा हम लोग डिजायर्ड डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए है ना, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो जीन सीधा हम लोग अगर बैक्टीरिया में, अगर टारगेट बैक्टीरिया में डालते हैं तो उसमें सीधा नहीं जाएगा, बट अगर हम लोग तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या उसकी कॉपीज नहीं बनेगी। अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम उसको प्लाज्मिड डीएनए में डाल देते हैं तो फिर उसका प्लाज्मिड डीएनए का कॉपी बनने वाला है, उसके साथ साथ हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का भी कॉपीज बन जाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ अभी क्या होगा, ये जो हम लोग ने क्लोनिंग वेक्टर को रेडी कर दिया है, उसमें हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब ये लोग ने क्या किया था, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि ये प्लाज्मिड डीएनए को लोग ने इंट्रोड्यूस करवाया था ई कोलाई सेल में, एस्चेरिशिया कोलाई सेल, which is somewhat related to, which is closely related to Salmonella typhimurium bacteria।
तो दोनों बैक्टीरिया में कुछ क्लोज रिलेशन है, इसलिए इसका प्लाज्मिड डीएनए को हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर देखो, हम लोग ने नहीं, स्टैनली और कोहेन ने यहाँ पर बेसिकली किया, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट कोहेन ने यहाँ पर बेसिकली किया था क्या कि यहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया फ्रॉम साल्मोनेला टाइफिमुलियम बैक्टीरिया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इन द ई कोलाई सेल. Now this E. coli cell is able to protect itself from antibiotic. It means it is having antibiotic resistant characteristic because it is having the plasmid which is containing this antibiotic resistant gene. Understood? अब यहाँ पर क्या होगा कि E. coli cells है वो डिवीजन करेगा, उसका सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होके 1 से 2 सेल बनेंगे. अब ये अंदर प्लाज्मिड है, अंदर हमारा डीएनए किसमें है, प्लाज्मिड में. तो प्लाज्मिड के भी कॉपीज अंदर बन चुके होंगे, तो आधे कॉपीज एक डॉटर सेल में जाएंगे, दूसरे आधे कॉपीज दूसरे डॉटर सेल में जाएंगे. नाउ बोथ ऑफ दिस डॉटर सेल्स आर हैविंग सम कॉपीज ऑफ दिस प्लाज्मिड डीएनए व्हिच इज कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इजंट इट? तो दोनों ही एंटीबायोटिक, अब इसमें से जितने भी आगे और बैक्टीरियल बॉडीज होंगे ऑल ऑफ देम विल बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. अंडरस्टूड? तो देखो हम लोग ने कैसे ये, हम लोग ने नहीं, सॉरी अगेन बोल गया मैं फिर से, तो बोयर और एंड कोहेन ने ये पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग ये किया था, राइट? दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज डन विद इन द बैक्टीरिया एंड इट वाज डन बाय दिस टू साइंटिस्ट. तो बेसिकली यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए. जैसे यहाँ पर बोयर और कोहेन ने मिलकर genetically modified E. coli banaya, right? Earlier than that, that E. coli was not resistant to that particular antibiotic, but they have made such kind of E. coli. Understood? चलो अब ये 3 स्टेप्स कौन से हैं वो देख लेते हैं. 3 मेन स्टेप्स कौन से होते हैं दैट वो देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है भाई, मुझे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि भाई ये पूरा इतने सारे जीन्स है ये बैक्टीरिया में, तो इसमें से कौन सा जीन के वजह से, कौन से जीन के वजह से ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ये बैक्टीरिया में मिल रही है. अंडरस्टूड? मुझे मालूम ही नहीं होगा किससे ये कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, which part of DNA is responsible for this particular characteristics, then which part of DNA I would take out, है ना? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. then only I can take out that part of DNA, then only I can take out that gene from genome of that organism. Understood? फिर क्या है? introduction of that desired gene into the host. Understood? कि भाई वो host के सेल में हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाना है वो सेल को, I mean with that desired DNA को, right? Obviously with its cloning vector. Understood? तो क्लोनिंग वेक्टर के साथ हम लोग वो डिजायर्ड जीन को हम लोग होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे. करवा देना भाई ई कोलाई में, है ना? ई कोलाई में क्लोनिंग वेक्टर के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करवा देना. दैट इज सेकंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट इज मेंटेनेंस ऑफ दैट डिजायर्ड जीन विद इन द सेल एंड इन देयर आई मीन, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आने वाले हैं उसमें भी हम लोग को उसका वो डीएनए को कंट्रोल रखना है. आई मीन whether that DNA is there or not, it should be there. Whether नहीं, लेकिन it must be there. Understood? We need to understand that. तो ये हर्बर्ट और कोहेन ने, आई मीन सॉरी, तो ये बोयर. So the experiment which was carried out by Boyer and Cohen, what can be inferred from this experiment? 3 steps होते हैं genetically modified organisms बनाने में, है ना? यहाँ पर genetically modified organism भी बनाया ना, E. coli which is resistant to particular type of antibiotic. Understood? जो naturally पहले existing नहीं करता होगा. Understood? तो ऐसा genetically modified organism बनाने के लिए हमें 3 steps चाहिए. What are those 3 steps? First is identification of DNA, identification of gene or DNA segment responsible for that desired characteristics. Understood? मुझे ऐसा चाहिए कि भाई पोटैटो प्लांट का लीफ है वो ग्लो करे रात को, तो ग्लो करवाने के लिए जीन कहाँ से मुझे मिलेगा? फायरफ्लाई में मिलेगा. फायरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, राइट? जिसको हम लोग ग्लो वॉर्म भी बोलते हैं. तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच पर्टिकुलर जीन विद इन द जीनोम ऑफ firefly is responsible for producing light at night. Understood?
तो लूसीफेरेज एंजाइम का जो जीन होता है LUC जीन होता है, इट इज द LUC जीन, राइट? तो वो LUC जीन मुझे चाहिए, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट जीन, अंडरस्टूड? सेकेंड थिंग इज I need to introduce that gene within the host organism, ठीक है? चलो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बोयर एंड कोहेन वाला, कि मुझे मालूम पड़ गया, चलो मेरे पास तो डीएनए आ गया है, नाउ आई नीड टू इंट्रोड्यूस विदिन द ई कोलाई सेल। ई कोलाई यहाँ पर होस्ट था, है ना? तभी तो उसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, है ना? आई वांट ई कोलाई टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, I don't want anything in Salmonella typhimurium, but लेकिन Salmonella typhimurium में मेरा desired DNA था, तो वो DNA मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, मेरे होस्ट DNA में जिसको मुझे जेनेटिकली मॉडिफाई करना था उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया, राइट? नाउ थर्ड स्टेप इज मेंटेनेंस ऑफ DNA within the host and ट्रांसफर ऑफ दैट डीएनए टू दी नेक्स्ट जनरेशंस। तो भाई अगले जनरेशंस में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि हमें भाई एक ही सेल तक रह गया वो जीन, अंडरस्टूड? नहीं तो फिर से वही वाला हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में जो हुआ था कि भाई हर जनरेशन में नया नया हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है, तो फिर से वही आ जाएगा, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई हम लोग ने एक सेल में डाल दिया, नाउ दैट सेल विद द जीन इज हैविंग, जैसे यहाँ पर हम लोग ने प्लाज्मिड डीएनए यूज किया था जिसका उसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, हमने नहीं, बोयर एंड कोहेन ने, बिकॉज सो द एक्सपेरिमेंट which was carried out by Boyer and Cohen, what can be inferred from this experiment? 3 steps होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने में, है ना? यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बनाया ना, ई कोलाई which is resistant to particular type of antibiotic, अंडरस्टूड? जो नेचुरली पहले एग्जिस्टिंग नहीं करता होगा, अंडरस्टूड? तो ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए। व्हाट आर दोस 3 स्टेप्स? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन और डीएनए सेगमेंट responsible for that desired characteristics, अंडरस्टूड? मुझे ऐसा चाहिए कि भाई पोटैटो प्लांट का लीफ है वो ग्लो करे रात को, तो ग्लो करवाने के लिए जीन कहां से मुझे मिलेगा? फायरफ्लाई में मिलेगा। फायरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, राइट? जिसको हम लोग ग्लोवर्म भी बोलते हैं। तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच पर्टिकुलर जीन विद इन द जीनोम ऑफ फायरफ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट एट नाइट, अंडरस्टूड? तो लूसीफेरेज एंजाइम का जो जीन होता है LUC जीन होता है, इट इज द LUC जीन, राइट? तो वो LUC जीन मुझे चाहिए, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट जीन, अंडरस्टूड? सेकेंड थिंग इज आई नीड टू इंट्रोड्यूस दैट जीन विद इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है? चलो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बोयर एंड कोहेन वाला, कि मुझे मालूम पड़ गया, चलो मेरे पास तो डीएनए आ गया है, नाउ आई नीड टू इंट्रोड्यूस विद इन दी ई कोलाई सेल। ई कोलाई यहाँ पर होस्ट था, है ना? तभी तो उसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, है ना? आई वांट ई कोलाई टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, I don't want anything in Salmonella typhimurium, but लेकिन Salmonella typhimurium में मेरा desired DNA था, तो वो DNA मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, मेरे होस्ट DNA में जिसको मुझे जेनेटिकली मॉडिफाई करना था उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया, राइट? नाउ थर्ड स्टेप इज मेंटेनेंस ऑफ DNA within the host and ट्रांसफर ऑफ दैट डीएनए टू दी नेक्स्ट जनरेशंस। तो भाई अगले जनरेशंस में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि हमें भाई एक ही सेल तक रह गया वो जीन, अंडरस्टूड? नहीं तो फिर से वही वाला हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में जो हुआ था कि भाई हर जनरेशन में नया नया हाइब्रिडेशन करना पड़ता है, तो फिर से वही आ जाएगा, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई हम लोग ने एक सेल में डाल दिया, नाउ दैट सेल विद द जीन इज हैविंग, जैसे यहाँ पर हम लोग ने प्लाज्मिड डीएनए यूज किया था जिसमें उसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, हमने नहीं, बोयर एंड कोहेन ने, बिकॉज दैट डीएनए इज लाइगेटेड विद प्लाज्मिड डीएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड डीएनए में इंटीग्रेट करवाया था और वो प्लाज्मिड डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी था, दैट्स व्हाई दैट प्लाज्मिड इज एबल टू रेप्लिकेट बाय इट्स ओन। तो अंदर वो इक्वलाइज सेल के अंदर में ही वो प्लाज्मिड के मल्टीपल कॉपीज बन गए होंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे, और फिर वो डॉटर सेल्स जब मैच्योर होंगे, वो डॉटर सेल्स जब फिर से डिवाइड करे जाएंगे तो उससे पहले वहां पर भी बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी, और वहां पर भी जब वो सेल डिवाइड होंगे, आई मीन डॉटर सेल्स के भी डॉटर सेल्स जब बनेंगे तब उसमें भी अच्छे से प्लाज्मिड डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ दिस डीएनए इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू न्यूअर जनरेशंस, अंडरस्टूड? तो ये 3 steps, these 3 steps are very very important in producing genetically modified organisms.